I hope you are reading your NCERT textbook. As we are moving ahead in this chapter of ecosystem, I am sure आपको धीरे धीरे समझ रहा है, because everything is a continuation to the previous thing. अगर आपका कोई previous lecture miss हुआ है, तो please go back and see that lecture and then continue with these lectures, okay? Because step by step हमको आगे बढ़ना है through the chapter. Today I will be dealing about ecological pyramids. Now you tell me what a pyramid is. क्या होता है एक pyramid? If I say a pyramid, क्या आता है आपके mind में? Yes, I'm sure Egypt comes to mind. What else? So now if Egypt is coming to mind, you know that a pyramid will be a structure which will be broad at the base, narrow at the apex. Okay, this is a pyramid which we call upright pyramid. It is an upright pyramid. All right. And if I say that the apex will be broad, the base will be narrow, this will be an inverted pyramid. Okay. इकोलॉजी में पिरामिड्स को यूज किया है ट्रॉफिक लेवल्स को रखने के लिए, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, कार्निवोर्स, दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स को रखने के लिए एंड स्टडी करने के लिए कि एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम के लिए व्हाट काइंड ऑफ पिरामिड शुड बी देयर इन नेचर. सो फॉर अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम नेचर में अपराइट पिरामिड होना चाहिए. दिस इज मोर प्रिफरेबल. ऑलराइट, दिस कंसेप्ट ऑफ पिरामिड इन इकोलॉजी वाज गिवन बाय Elton. Sorry. It was given by Elton, and these pyramids are called Eltonian pyramids. Ecological pyramids are also called Eltonian pyramids. MCQ. So Eltonian pyramids, कहीं पे भी word दिखा, you have to correlate it with ecology. It's going to be ecological pyramids, जिसमें ट्रॉफिक लेवल्स को, आई एम श्योर अभी आपको समझ रहा है ट्रॉफिक लेवल्स क्या होती है, प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, हर्बीवोर क्या होता है, कार्निवोर क्या होता है, फर्स्ट डिग्री कार्निवोर क्या होता है, सेकेंड डिग्री कार्निवोर क्या होता है. यू अंडरस्टैंड ऑल दिस नाउ. वी हैव सीन इन डिटेल अबाउट द फूड चेन एंड द फूड वेब एंड द ट्रॉफिक लेवल्स. ओके, सो ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स are a graphical representation of the various trophic levels in an ecosystem. I repeat, लिखो उसको, it's a graphical representation of the various trophic levels in an ecosystem. All right, and for the ecosystem to be sustainable in nature, it is preferred that the pyramid should be upright rather than inverted. There can be, however, these two types of pyramids exist, the upright one and the inverted one. Now, these pyramids can be of three types. Ecological pyramids, three types के हो सकते हैं. One is depending on the basis of number. ओके, मीन्स नंबर कितना है एक ट्रॉफिक लेवल पे ऑर्गेनिजम्स का. ऑलराइट, मीन्स प्रोड्यूसर का नंबर क्या है, दिस विल बी अ यूनिट. हर्बीवोर्स का नंबर क्या है, कार्निवोर्स का नंबर क्या है. सो दिस इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल. अगर सेकेंडरी कार्निवोर लेंगे तो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल. इनका नंबर क्या है, दिस विल बी एनी यूनिट. Okay, it will be a numerical unit. एक नंबर रहेगा. This will be the pyramid of number. Second is pyramid of biomass. Now, what is biomass? It is the weight of all the living substances on one trophic level. अगर biomass pyramid के relation में देखें, we have seen productivity में biomass is the organic weight, organic matter which is present or which is produced at each level or which is transferred from the producer to the consumers. All right, so biomass को हमेशा weight
पर यूनिट एरिया में रिकॉर्ड करेंगे. दिस विल बी द यूनिट. नाउ बायोमास कैन बी वेट वेट और ड्राई वेट. So for the purpose of ecological studies, always the dry weight is considered. We do not consider the wet weight of the organism. हमेशा dry weight consider होता है. This you have to remember. Again important MCQ. Biomass जो है उसमें हम dry weight consider करते हैं. इसको standing crop भी बोलते हैं. It is also called standing crop. ओके वाई. नाउ अगर ग्रासलैंड में बायोमास कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ ग्रासेस दैट आर स्टैंडिंग विल बी द स्टैंडिंग क्रॉप और द बायोमास ऑफ दैट ग्रासलैंड. डू यू अंडरस्टैंड? ओके. अगर एक एनिमल स्पीशीज का एक लैंड पे एनिमल्स है उनका बायोमास कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ एनिमल्स दैट आर स्टैंडिंग, दैट आर अलाइव, दैट आर लिविंग, वो हो जाएगा वहां का बायोमास. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप, which will be expressed in weight per unit area, and always the dry weight is considered in ecological studies. This you have to remember about biomass. Next is the pyramid of energy. ये पिरामिड बताता है कि प्रोड्यूसर से कितनी एनर्जी पास होती है हर्बीवोर्स को, हर्बीवोर से कितनी एनर्जी पास होती है कार्निवोर्स को. That is from a producer to a primary consumer, to a secondary consumer, to a tertiary consumer. We have seen energy flow में कि जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे energy loss होता है. Energy is always lost at each trophic level as we go from the producer to the tertiary consumer. ये हमने देखा है डिटेल में. इसका भी पिरामिड बनाएंगे. प्रोड्यूसर के पास कितनी एनर्जी है, कंज्यूमर के पास कितनी ट्रांसफर होती है, इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम. सो यू हैव टू रिमेंबर पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी विल बी द थ्री टाइप्स. Here it will be dependent on the numerical unit, कितना नंबर है एक स्पीशीज का या ऑर्गेनिजम्स का एक ट्रॉफिक लेवल पे. बायोमास will be the standing crop or the dry weight per unit area at one trophic level. Energy will be again in joules. Okay, per unit area again or per trophic level. So now moving on, let us start with the first one, that is the pyramid of number. आप एक कॉपी और पेन ले लो and go on making these pyramids with me so that you understand them better. All right. So pyramid of number. इसमें एक सिचुएशन कंसिडर करो दैट इट्स अ ग्रासलैंड. ग्रास जो हो जाएगा वो प्रोड्यूसर होगा. ओके, दिस इज प्रोड्यूसर ग्रास. इसका नंबर सपोजिंगली है 1000. ओके, देन the number of organisms, the herbivores, these are the herbivores, or say they are the primary consumers. इनका नंबर है 500 supposingly, or make it 300. Next, on the herbivores, the carnivores are feeding. These will be the secondary consumers. इनका नंबर है say 40. And on the carnivores, you can have the tertiary carnivores as well, which will be secondary carnivores, which will be tertiary consumers. इनका नंबर है say 5. So this is how number of organisms will move in a trophic level to give the shape of a pyramid. So ये pyramid is an upright pyramid. The base is wide, the apex is narrow. ये है first trophic level,
this is second, this is third, this is fourth. All right. In this grasslands, the number pyramid will always be upright. Let us see this number pyramid in an aquatic ocean, in an aquatic ecosystem. When I say an aquatic ecosystem, इसमें pond, lakes, oceans, everything comes. All right. So in an aquatic ecosystem, phytoplanktons रहेंगे, जो producers रहेंगे, they will be making food. Phytoplanktons. Now, you cannot actually count the number of phytoplanktons. वो तो हम grass के लिए भी नहीं कर सकते हैं. We cannot actually count the number of grass plants in a grassland. So it can either be one fixed unit or it can be a relative number. जैसे अगर phytoplanktons मैं लिखूं, there are millions of phytoplanktons. So this millions is an approximate number. It's not an absolute number, it's a relative number. On the phytoplanktons, you will have the primary consumers, that is the zooplankton. Okay, then we will have some small fishes. On the small fishes, we will have the large fishes. All right. So this is how, again, ये बहुत ज्यादा रहेंगे नंबर में. As we move above, the number is going to decrease, and this ecosystem again is going to be an upright one. This ecological pyramid is again going to be an upright one. So please draw these pyramids. आप साथ साथ करते जाओ तो आपको समझेगा कि क्या हो रहा है. Okay. So see, this is an upright pyramid. This is an upright pyramid. I have told you कि ये relative numbers भी हो सकते हैं, ये absolute numbers भी हो सकते हैं. Now let us come to the third example. If there is a tree in the forest, tree itself is one ecosystem. जो producer है उसके ऊपर feed करने वाले organisms will be the consumers. So there is one tree. Okay, one tree, one big tree. उसके ऊपर अगर बहुत सारे insects feed कर रहे हैं, around 2000 insects. These insects are being fed by around, say, similar number of small birds. Similar or less number of small birds. Okay. Say वो less हैं थोड़े से. And these small birds again are fed by less number of large birds. ये हो गया first trophic level, second, third and fourth. NCERT textbook has asked you to draw a pyramid of this example. Okay, there is a tree. On a tree, insects are feeding. On the insect, small birds are feeding. On the small birds, large birds are feeding. But large birds का number कम रहेगा and tree भी एक ही है. So यहाँ पे you get a pyramid where this is narrow, this is broad and again this is narrow. Okay, जिसको हम बोलते हैं a spindle shaped pyramid where there is a narrow apex, narrow base and in between it is broad. So it's a spindle shaped pyramid. This you have to remember. ये एग्जाम्पल आपको अगर समझ गया है तो आप एग्जाम में उसको ड्रॉ करके देख सकते हो. बिकॉज इट इज नॉट ट्रू कि एक ट्री के लिए, एक फॉरेस्ट में एक ट्री के लिए ये एग्जाम्पल हमेशा ट्रू रहेगा. आई विल डिस्कस वन मोर एग्जाम्पल विथ रिलेशन टू द ट्री. ओके, वन ट्री इज देयर. ऑल राइट, उसके ऊपर 2000 insects are there. On the insects, birds are there. On the birds, parasites are there.
which will be greater in number than the birds. You know what a parasite is, okay? Ectoparasite, endoparasite, ये हमने डिस्कस किया है. तो ectoparasites जो रहेंगे birds के ऊपर जो फीड कर रहे हैं, they will be larger in number. अब अगर ये pyramid देखेंगे, तो it's going to be an inverted pyramid. Because the number is going on increasing. Okay? हम यहाँ पे specifically number की बात कर रहे हैं हर trophic level पे. We are not seeing whether the organism is big or is small या उसका क्या role है. We are just speaking on number of trophic levels which are feeding or which are dependent on the previous trophic level. It's reverse over here. ये एक tree है. So it will be an inverted pyramid. This example is given in state board textbook. They have asked you to draw this example where on a tree insects are feeding. On the insect small birds are there. On the small birds parasites are there. So ये inverted pyramid होगा. But अगर ये large birds feed करेंगे small birds पे तो वो spindle shaped pyramid होगा. You have to remember both these examples. As well as you have to remember these examples for grasslands or terrestrial ecosystem and this for aquatic ecosystem. So pyramid of number grassland में हमेशा upright रहेगा, aquatic में हमेशा upright रहेगा. Tree के लिए या forest ecosystem के लिए या forest की tree के लिए it can vary, it can be spindle shaped depending on which organisms are present on the trophic levels, or it can be inverted ones depending on which organisms are present on the trophic levels. Please draw these diagrams in your notebook. Finish? Now let us come to the second example. Let us come to the second example, that is of pyramid of biomass. All right. Pyramid of biomass. इसमें भी first example देखेंगे grasslands का. We will be seeing the grasslands first. अब बायोमास क्या है? I have told you the weight per unit area. Okay, weight, the actual mass. Bio means living, mass means the weight of the organism. It is also called standing crop. ये आपको याद रखना है. So grass का weight ज्यादा रहेगा बहुत. This is the producer, supposingly grass. उसके ऊपर herbivores, उसके ऊपर secondary consumer, that is carnivore, tertiary consumer. Herbivore will be the primary consumer. So weight of this grasses, इसका number भी ज्यादा रहेगा, तो इनका weight भी ज्यादा रहेगा as compared to, because higher trophic levels पे numbers कम होते जाएंगे. And अगर हम particular herbivores का देखें, if we see millions of grass plants and we see weight of 100 herbivores, the grass plant weight is going to be more, the biomass is going to be more. So the pyramid again is going to be an upright one for a grassland. यही example, अब biomass का example अगर हम एक aquatic ecosystem में देखते हैं, again aquatic will include small ponds also, large oceans also, big seas also, वो आपको याद रखना है. अब अगर बायोमास का एग्जाम्पल एक aquatic ecosystem में देखेंगे तो ये जो phytoplanktons हैं, phytoplanktons, these are unicellular organisms. इनका कुछ भी वेट नहीं रहता है, मिनिमलिस्टिक वेट रहता है. their biomass is very less.
ओके, दे आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड इनकी लाइफ भी बहुत कम रहती है. द लॉन्जेविटी इज वेरी लेस. द रिप्रोडक्शन पावर इज वेरी लेस. इसीलिए इनका बायोमास कम होगा एज कंपेयर्ड टू द जू प्लैंक्टॉन्स, एज कंपेयर्ड टू द स्मॉल फिशेस, and the larger fishes will have more biomass. Small fishes, large fishes. The biomass is going to be more over here. इनका बायोमास बहुत कम रहेगा फाइटोप्लैंक्टन्स का, देन जूप्लैंक्टन्स का. कंपेयर्ड टू लार्जर फिशेस, स्मॉल फिशेस का बायोमास कम रहेगा. So we will get an inverted pyramid. Although the number is more, phytoplanktons मैंने डिस्कस किया था मिलियंस में है, but there are millions of unicellular organisms, उनका कुछ भी वेट नहीं रहेगा as compared to the higher trophic level organisms. Their weight is going to be more. So pyramid of biomass in a aquatic ecosystem is going to be an inverted one. Very important MCQ. Pyramid of biomass in an aquatic ecosystem will be an inverted one. ये आपको पक्का पक्का याद रखना है. Pyramid of biomass in an aquatic ecosystem will be a inverted one. Let me take an example of the tree, that is forest ecosystem now. एक tree, I'm speaking here of a huge tree. Okay, although one in number, the biomass is going to be too much as compared to the insects that will be feeding on the tree. Insects का weight कुछ भी नहीं रहेगा as compared to the weight of this living big tree, and birds का weight कुछ भी नहीं रहेगा. Okay, so this pyramid again will be an upright one over here. जो नंबर में स्पिंडल शेप था और इन्वर्टेड था, वो बायोमास में यहाँ पे is an upright one. Please try to understand this and make these diagrams with me on a piece of paper. तो आपको ये एग्जाम्पल्स अच्छे से समझेंगे, बिकॉज इनको हम थियोरेटिकली रीड नहीं कर सकते हैं जैसा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज पिरामिड्स. फॉर क्वेश्चंस व्हिच विल कम, दे आर गोइंग टू बी कंफ्यूजिंग. ओके, सो ये अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आप इमीडिएटली ड्रॉ करके आप सॉर्ट आउट कर सकते हो व्हाट विल बी द आंसर टू दिस. एंड सम पॉइंट्स यू कैन रिमेंबर ऑल्सो, जैसे कि एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में बायोमास का पिरामिड हमेशा इन्वर्टेड रहेगा. देयर विल नेवर बी अ सिचुएशन जहां पे ये अपराइट हो सके. सो दिस इज अ श्योर शॉर्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, नाउ if you are done with this, we will move on to the third one, that is the pyramid of energy. Let's move on to the pyramid of energy. पिरामिड ऑफ एनर्जी. हमने देखा है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर, से तीसरे ट्रॉफिक लेवल पे, से चौथे ट्रॉफिक लेवल पे. दिस इज द प्राइमरी कंज्यूमर, दैट इज द हर्बीवोर. सेकेंडरी कंज्यूमर, दैट इज द प्राइमरी कार्निवोर. टर्शरी कंज्यूमर, दैट इज द सेकेंडरी कार्निवोर. And you can also have a quaternary consumer, that will be the tertiary carnivore. Okay, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी रिड्यूस होते जाती है. मतलब आपको अब ये तो समझ रहा है कि प्रोड्यूसर के पास मैक्सिमम एनर्जी रहेगी, एंड एज वी मूव फॉरवर्ड एनर्जी मिनिमम होगी. ऑलराइट, ये हर इकोसिस्टम के लिए यही रूल फॉलो करेगा.
So the pyramid of energy in any ecosystem will always be upright. Very important MCQ. Pyramid of number change हो सकता है depending on the ecosystem it is. Pyramid of biomass change हो सकता है depending on the ecosystem it is. But pyramid of energy हमेशा upright रहेगा, because we have seen as we go from producer to the higher trophic levels, एनर्जी प्रोड्यूसर के पास मैक्सिमम होगी और यहाँ रिड्यूस होती जाएगी. हमने 10% लॉ देखा था विच वॉज गिवन बाय लिंडरमैन. ओके, व्हाट इज द 10% लॉ? अगर प्रोड्यूसर के पास 1000 जूल्स एनर्जी है तो वो 90% अपने पास रखेगा और प्राइमरी कंज्यूमर को मिलेगा उसका 10%, मीन्स हो जाएगा 100 जूल्स. Okay, this is 10% of 1000 joules. Secondary consumer के पास इसका 10% जाएगा, that is 10 joules. Tertiary consumer के पास इसका 10% जाएगा, that is 1 joule. And quaternary consumer के पास इसका जाएगा 10%, that is 0.1 joule. इसीलिए मैंने वो डिस्कस किया था कि एक फूड चेन में जितनी ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स रहेगी उसमें एनर्जी कम होती जाएगी. ओके, एंड ये जो हायर ट्रॉफिक लेवल्स हैं यहाँ पे जो है ऑर्गेनिज्म, उनके पास एनर्जी मिनिमलिस्टिक रहेगी. ऑलराइट, अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऑन द एनर्जी पिरामिड. लेट मी फर्स्ट ड्रॉ इट फॉर यू एंड देन वी विल सी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच कम. सो प्रोड्यूसर्स, अगर 1000 जूल एनर्जी है यहाँ पे प्रोड्यूसर्स के पास, दैट इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. यहाँ पे 100 जूल्स हो जाएगी, यहाँ पे 10 जूल्स हो जाएगी, यहाँ पे 0.1 जूल हो, सॉरी 1 जूल हो जाएगी. ओके, so this is how it follows 10% loss. It is the 10% law. अब क्वेश्चन आता है 10% law is a law of what? It's a law of loss of energy as we move above in the ecological pyramid from the producer to the final consumer. Okay, एक फूड चेन यहाँ पे भी खत्म हो सकती है, सिर्फ ग्रासेस के ऊपर हर्बीवोर फीड कर रहा है, खत्म. ऑलराइट, एंड फूड चेन कैन कंटिन्यू, इसके ऊपर एक और लेवल भी हो सकती है, तो एनर्जी और 10% मिलेगी. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा हमेशा अपराइट होगा. ऑलराइट, ये याद रखो कि प्रोड्यूसर के पास जितना है उसमें से 90% वो अपने लिए रखेगा, 10% पास ऑन करेगा. कंज्यूमर को जितना मिला 90% अपने पास रखेगा, 10% पास ऑन करेगा. मीन्स प्रोड्यूसर ने अगर 1000 में से 100 दिया है तो 900 अपने पास रखे हैं. समझ में आ रहा है? कोई भी ऑर्गेनिज्म एक ट्रॉफिक लेवल पे जब है वो पास ऑन हमेशा 10% करेगा, 90% हमेशा अपने पास रखेगा. ऑलराइट, तो 1000 में से अगर प्रोड्यूसर को 10% देना है तो वो 100 देगा. 100 अगर दे दिया तो 1000 minus 100 will be 900, which will be the energy which is retained with the producer or which is saved with the producer. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर कि अगर प्रोड्यूसर ने 10% एनर्जी दी है तो प्रोड्यूसर के पास कितनी बची है या वो अपने लिए कितनी सेव करता है, 90%. 1000 में से अगर 100 दिया है प्रोड्यूसर ने तो प्रोड्यूसर के पास कितना सेव हुआ, 900. ओके, सिंपल एग्जांपल बताती हूँ. जो बच्चों को पॉकेट मनी मिलता है, पॉकेट मनी 5000 है तो फ्रेंड को बर्थडे पे गिफ्ट करते हैं 500 का. ऑलराइट, अपने पास बाकी का सेव करते हैं. पॉकेट मनी 10,000 है तो फ्रेंड को गिफ्ट करते हैं 1000 रुपीज का, बाकी 9000 अपने पास रखते हैं.
सो मैक्सिमम अपने पास रखेगा प्रोड्यूसर, पास ऑन सिर्फ 10% करेगा उसका। करते हो कि नहीं आप लोग ऐसा? डिपेंडिंग ऑन योर पॉकेट मनी यू डिसाइड योर एक्सपेंसेस कि किस पे कितना पैसा खर्च करना है। सिमिलरली प्रोड्यूसर्स, herbivores, carnivores, the secondary consumers, tertiary consumers, all will do at these trophic levels. They're going to follow this 10% law. So now you tell me, अगर प्रोड्यूसर के पास 100 जूल्स एनर्जी है तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितना रहेगा? इफ प्रोड्यूसर इज हैविंग 100 जूल्स, हाउ मच इज द प्राइमरी कंज्यूमर गोइंग टू हैव? You have to apply the 10% law, okay? So 100 divided by 10. It will be 10 joules to the primary consumers. All right? अब secondary consumer के पास कितना रहेगा? Again, so 10 divided by 10. It will have 1 joule. Means प्रोड्यूसर से जैसे हम प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर पे जा रहे हैं, हम एक जीरो रिमूव कर रहे हैं। सिंपल कैलकुलेशन, वी आर रिमूविंग 1 जीरो और वी आर डिवाइडिंग बाय 10 फॉर द 10% लॉ टू अप्लाई। ऑलराइट, आई कैन गिव यू अ रिवर्स एग्जाम्पल ऑफ दिस। चलो रिवर्स आते हैं अभी। अगर यहाँ पे आई टेल यू कि 1 जूल एनर्जी है सेकेंडरी कंज्यूमर को जो रिसीव हुई है, तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितना है? यहाँ पे जब आप आओगे आप एक जीरो ऐड करोगे। अगर प्राइमरी कंज्यूमर के पास 10 जूल्स है तो प्रोड्यूसर के पास 100 जूल्स होगा। मींस जब मैं यहाँ आ रही हूँ मैं एक जीरो ऐड कर रही हूँ या मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 10 से। जब मैं प्रोड्यूसर से कंज्यूमर जा रही थी मैं डिवाइड कर रही थी 10 से या एक जीरो रिमूव कर रही थी। आई होप दिस कैलकुलेशन इज क्लियर टू यू। आपको समझ रहा है कि हम जब यहां जा रहे हैं फ्रॉम द बेस टू द अपेक्स हम एक जीरो ऐड कर रहे हैं, जब हम प्रोड्यूसर से ऊपर जा रहे हैं या हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम एक जीरो रिमूव कर रहे हैं जब हम प्रोड्यूसर से आ रहे हैं, या हम डिवाइड कर रहे हैं बिकॉज एनर्जी लॉस होगा। तो अगर मुझे सेकेंडरी कंज्यूमर की एनर्जी पता है, आई कैन फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ द प्रोड्यूसर। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 10 से या एक जीरो ऐड करते जाएंगे हर ट्रॉफिक लेवल पे। ऑलराइट, नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ये लिख के देखो आपकी नोटबुक में अभी मेरे साथ, तो आपको समझ में आएगा। एंड वन मोर पॉइंट, एनर्जी फ्लो विल ऑलवेज बी यूनिडायरेक्शनल। हमने देखा है कि यूनिडायरेक्शनल रहेगा, तो प्रोड्यूसर से ऊपर ही जाएगा एनर्जी, इट विल नॉट कम बैक। नाउ यू आंसर सम क्वेश्चन। Okay, you have to solve these questions with me, okay? First question, producer, primary consumer, secondary consumer. यहाँ पे आई एम टेलिंग यू 100 जूल्स है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है? दिस इज एन MCQ. You will get कि ये A है, ये B है. Now you have to match A is equal to what and B is equal to what. So you have to solve this problem. अब 100 joules अगर इसके पास है, तो it's going to be divided by 10 to come here. तो यहाँ पे 10 joules हो जाएगी. Okay? Because it's going to keep 90% for itself. एंड यहाँ अगर जाएंगे, यहाँ का 10% उसको मिला है, तो एक मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 10 कर दिया. सो A is 1000 joules, B is 10 joules. I hope this is very clear.
करके देखो, आपको समझेगा. अप्लाई द 10% लॉ एंड सी. ऑल राइट. सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू. ध्यान से सुनो अभी. ओके. प्रोड्यूसर है, लिखो ये मेरे साथ और सॉल्व करो. ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, एंड ये टर्शरी कंज्यूमर है इन अ फूड चेन. दीज आर द ट्रॉफिक लेवल्स. इफ आई टेल यू 9 joules is what is saved by secondary consumer. Okay, 9%, 9 is what is saved. So you tell me कि यहाँ पे कितनी एनर्जी रिसीव हुई होगी. ऑलराइट. नाउ यू नो कि 9 जूल अगर उसने सेव किए हैं, मीन्स 90% सेव किया है, तो 1 जूल उसने दिया होगा इधर, बिकॉज 10 में से 9 हटा दो, 1 बचा. 90% उसने अपने पास रखा था, 10% इधर दिया, तो 1 जूल दिया. इफ आई कम हियर, सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या होगा उसका आंसर. टेल मी. अब यहाँ का टोटल अगर 10 जूल्स है, जिसमें से 9 जूल सेव था, इफ आई वांट टू कम हियर, मैं मल्टीप्लाई करूंगी 10 से, 100 जूल्स हो गया. इफ आई वांट टू कम हियर, मैं फिर से मल्टीप्लाई करूंगी 10 से, 1000 जूल्स हो गया. ओके. यस. बट इफ आई आस्क यू कि इन दोनों स्टेजेस पे रिटेन कितना हुआ था, इनके पास कितना सेव हुआ था, अगेन आप इसका 90% करोगे. प्राइमरी कंज्यूमर ने 100 में से 10 इधर दिया था, तो 90 रिटेन हो गया. प्रोड्यूसर ने 1000 में से 100 इधर दिया था, ट्रांसफर किया था, सो 900 सेव किया. That is how, by knowing only this one value, that is 9 joules, I could find out कि यहाँ पे एनर्जी कितनी ट्रांसफर हुई थी एंड कितनी उन्होंने सेव की थी, by following this 10% law. Solve it and see. If you don't understand, please give me a call. Please get back with your doubts. But ये समझना जरूरी है. श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं इकोसिस्टम से, पिरामिड्स के ऊपर, डिकम्पोजर्स के ऊपर, फूड चेन्स के ऊपर, ट्रॉफिक लेवल्स के ऊपर. ओके. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड इट्स एन इजी वन. एक और एग्जाम्पल. चलो देखो, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू नाउ. यू हैव टू सॉल्व. आई एम नॉट सॉल्विंग. 20 जूल एनर्जी है प्रोड्यूसर के पास. नाउ आई एम टेलिंग यू, is with producer in following food chain. फूड चेन क्या है? प्लांट, माइस, स्नेक, पीकॉक. मैंने बता दिया है कि 20 जूल प्रोड्यूसर के पास है. नाउ इन दिस फूड चेन यू हैव टू रिकॉग्नाइज विच इज द प्रोड्यूसर एंड द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एनर्जी available to peacock okay, calculate the energy available to peacock in this food chain. चलो शुरू कर दो कैलकुलेशन. यू हैव टू सॉल्व दिस. आई एम नॉट गोइंग टू गिव द आंसर. 10% लॉ लगाओ, चालू करो 20 जूल से. चलो क्या होगा 20 अगर प्लांट के पास है, माइस के पास हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 2. ओके.
स्नेक के पास हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 0.2। पीकॉक के पास हो जाएगी 0.2 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 0.02 जूल। आई होप आपको समझ रहा है कि हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं एनर्जी पिरामिड में 10% लॉ लगा के एनर्जी को। प्लीज डू दिस एंड सी सो यू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। ऑल राइट, चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज प्रेजेंट एट प्रोड्यूसर लेवल। प्रोड्यूसर लेवल पे कितना एनर्जी रहेगा if 900 joules is saved by a secondary consumer। secondary consumer ने अगर 900 joules save किया है, we are not speaking on what it obtained, we are speaking that it has saved 900 joules। तो प्रोड्यूसर के पास कितनी joules एनर्जी रही होगी? You have to fill in the blank over here, so come on, solve it fast। So पहले तो प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। नाउ assuming that it has saved 900 joules, okay, means उसको रिसीव हुआ होगा 1000, 900 उसने सेव किया होगा, 10% पास ऑन करेगा। If I have to move here, I am going to multiply it by 10, so it will become 10,000 now। If I have to move again here, it will be multiplied by 10। All right, so मैं एक जीरो ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। 1 2 3 4 जीरो से 1 2 3 4 5 जीरोस हो गए। If I have to calculate in this ways, मुझे एक जीरो ऐड करना है। अगर मुझे इधर कैलकुलेट करना है, मुझे एक जीरो माइनस करना है। That is the easiest and simplest calculation to get the answer, जो कि यहाँ पे हो जाएगा ये। ओके, आई होप आप सबको ये समझ रहा है, द 10% लॉ। अब ये पिरामिड्स को मैं हमेशा बेन 10 से याद रखती हूँ। बेन 10। नाउ व्हाट इज बेन 10? यू ऑल नो द कार्टून कैरेक्टर बेन 10। पिरामिड ऑफ बायोमास, एनर्जी एंड नंबर, ये 3 टाइप के पिरामिड्स होते हैं। उसमें से जो एनर्जी वाला है वो 10% लॉ फॉलो करता है। ओके, बिकॉज क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि पिरामिड ऑफ एनर्जी फॉलोज व्हाट परसेंट लॉ, तो ऑप्शंस में रहेगा 20% लॉ, 100% लॉ, 1% लॉ और एनी अदर ऑप्शन। सो 10% शुड बी योर आंसर। एंड ये जो एनर्जी पिरामिड है, बिकॉज ऑफ दिस 10% लॉ, इट इज फिक्स्ड फॉर ऑल द इकोसिस्टम्स। प्रोड्यूसर्स के पास हमेशा ज्यादा रहेगी। इट विल ऑलवेज बी एन अपराइट वन। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ अगेन। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इकोसिस्टम के ऊपर। इफ यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट, आप इसको सॉल्व कर सकोगे। दे आर वेरी इजी टू सॉल्व इफ यू हैव अंडरस्टूड द 10% लॉ। ओके, सो बाय नाउ आपको ये तो समझ गया है कि पिरामिड्स क्या होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एल्टोनियन पिरामिड्स। You know the types of pyramids now depending on number, biomass and energy। आपको 10% लॉ अच्छे से समझ गया है, हम उसको बेन 10 से याद रखेंगे। You know this। Let us come to solar energy now। There is a catch over here। मैंने प्रोडक्टिविटी में डिस्कस किया था कि सन की जो एनर्जी रहती है उसमें से 99% वापस जाती है एटमॉस्फेयर में, सिर्फ 1% प्लांट्स यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए। If you remember, go back and see this। This is not related to the photosynthetic active radiation जो PAR हमने देखा था। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि टोटल सन की जो सोलर एनर्जी है वो 99% रहेगी। उसमें से 1% इज फॉर द प्लांट्स यूटिलाइज ओनली 1% फॉर इट एंड उतना प्रोड्यूस होता है। तो अब अगर मैं सन को यहाँ रखूं, फिर प्रोड्यूसर लगाऊं,
उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। तो यहाँ जो एनर्जी ट्रांसफर होगी इट विल बी ओनली 1%। यहाँ जो रहेगा उसका सिर्फ 1% इधर ट्रांसफर होगा, whereas from producer to the next higher levels 10% ट्रांसफर होगा। तो ये जो 10% लॉ है इट इज ओनली फॉर द एनर्जी पिरामिड जो प्रोड्यूसर से चालू होता है। इट्स ओनली फॉर द एनर्जी पिरामिड 10% लॉ। बट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो एनर्जी का पिरामिड दिया हुआ है उसमें नीचे से उन्होंने सनलाइट को भी दिया है या सोलर एनर्जी, एंड दे हैव टोल्ड कि सोलर एनर्जी जितनी रहती है उसकी 1% ही प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं। सो देयर इज अ कैच। ये क्वेश्चन में अगर ऐसे आया तो सन की जो एनर्जी है उससे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो प्लीज डोंट अप्लाई द 10% लॉ। अगर सन की एनर्जी है से 10 लाख जूल तो उसका 1% ही प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है। ऑलराइट, इसका 1% अगर मुझे करना है तो मुझे इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। आई विल हैव टू रिमूव दीज 2 zeros। इट विल बी दिस मच जूल्स, 10,000 जूल्स। एंड उसके बाद जो यहां जाएगा इट विल बी डिवाइडेड बाय 10। ओके, सो इट विल बी 1000 जूल्स। तो ये आपको पक्का पक्का याद रखना है कि सन के साथ कंफ्यूज नहीं होना है ये 10% लॉ में। दिस इज रिलेटेड टू 90%, 99% ऑफ द सन सोलर एनर्जी गोज बैक टू द एटमोस्फियर, ओनली 1% इज यूज्ड बाय द प्लांट फॉर प्रोडक्शन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं इसमें। ऑलराइट, so this is all about the ecological pyramid. Read about the pyramids from your NCERT textbook, from your state board textbook. अच्छे से पढ़ो उसको, ये problems solve करो। Just try to see that you have understood how we are calculating, and pyramids बना के देखो of number of biomass. Just do rough drawings जैसे अभी किया है, and you will understand. It will be conceptual. I don't want you to learn it by heart. वो sentences difficult है read करने को। If you read one sentence, you won't understand. But ये pyramids draw कर लिए, ये energy flow कैसे हो रहा है, calculations देख लिए, you will understand it all. All right. Get back to me with any doubts you have up till now. I'll see you in the next lecture. Bye bye.